Hello friends, last time we have derived the equation for the radius of the orbit as well as speed, orbital speed of the electron and equation for the energy. Now if we revise the equation for the radius and energy, then orbital radius equation for the radius r is equal to n square epsilon naught upon pi z square m. From that we can say r proportional to n square upon z. And if we consider the hydrogen atom, okay, for hydrogen atom, z is equal to 1, then we can say r proportional to n square for the hydrogen atom. As well as we can say energy. If we denote energy as a En, then equation is minus z square e raised to 4m upon 8 epsilon naught square n square h square. From that already we have discussed a total energy is proportional to z square upon n square. If we consider for the hydrogen atom and if we place the all values of electron, mass, 8 as epsilon naught square and h square, we can get energy of the electron, total energy of the electron is minus 2.18 10 to the power minus 18 joule upon n square. This is for the hydrogen atom. ये जो हमने किया वो हाइड्रोजन के लिए. एन अगर यही आंसर हमें जूल में चाहिए, then it is minus 13.6 upon n square electron volt. That means e raised to 4m 8 epsilon naught square h square का जो भी हमें आंसर मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, that is minus 13.6 upon n square. Here the negative sign of the total energy indicate electron is bound in an orbit. अगर हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है फ्रॉम द ऑर्बिट, रिलीज करना है ऐसे, देन वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी. देन सप्लाइड एनर्जी ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. दैट्स व्हाई द नेगेटिव एनर्जी इंडिकेट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड इन एन ऑर्बिट. जो भी उसका फोर्सेस है, जो भी न्यूक्लियस उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उससे वो बाउंड है. अगर हमें उसको रिलीज करना है तब बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़े, एंड दैट कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव. तब जाके ये पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी जीरो हो, then electron becomes free. Once again, here the negative sign in the equation itself indicate electron is bound in orbit. अब यहाँ से जो भी हम सोचें कि 13.6 upon n square अगर कोई भी दूसरे एटम के लिए लिखना है तो हम बोल सकते हैं कि it is z square. अब अगर हाइड्रोजन के लिए नहीं, फिर जनरल इक्वेशन बोल दें, then En is equal to minus z square 13.6 upon n square electron volt for any atom. हर एक एटम का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, उस हिसाब से हमें टोटल एनर्जी भी मिले. अभी हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम. और अभी अब इसका ऐसा एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं. देन एनर्जी डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम. इसका मतलब एनर्जी इज minus 13.6 upon n square in electron volt. If we consider energy level, मतलब एनर्जी कंसीडर्ड ऑन वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पर हम एनर्जी लेंगे और ये हम सोचिए हमारा ऐसे
different orbits. If we consider n is equal to 1, then if you place n is equal to 1, then फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी होगी वो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Now for the second orbit, n is equal to 2. Just place the value of n is equal to 2 here. मतलब 13.6 upon 4. It is minus 3.4 electron volt. Then consider energy for the third orbit. Just put up the value of 3 here. मतलब divided by 9. और divided by 9 के लिए हमें एनर्जी मिलेगी minus 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. By this way हमें कोई भी ऐसे ऑर्बिटल लेवल की एनर्जी मिल सकती है. इफ वी कंसीडर n इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब ऐसे हाईएस्ट ऑर्डर एनर्जी लेवल के लिए, तब यहां पर बोल देंगे इट इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इफ यू प्लेस n इज इक्वल टू इंफिनिटी हियर, देन इट इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So these all are the energy of the different orbits. यहाँ पर ये n is equal to 1. This is called ground state. तो n is equal to 1 या फिर ऐसे ground state बोले, that energy is minus 13.6 electron volt. अब n is equal to 2, n is equal to 3, मतलब फर्स्ट को छोड़ के जो भी ऐसे एनर्जी लेवल से this all are called as a excited state. These all are called excited state. अब उसमें अगर पर्टिकुलर बोले n is equal to 2, then it is called first excited state. n is equal to 3, it's called second excited state. और इससे रिलेटेड हमें बहुत सारे MCQs पूछ सकते हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, कि व्हाट अबाउट द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट. तो देखो, अब एक्साइटेड स्टेट के लिए तुम्हें ऐसा करना है शॉर्टकट में कि अगर कहीं पर भी तुम्हें ऐसा दिखाई दे एक्साइटेड स्टेट, तो उसके आगे नंबर होगा. कौन सा नंबर है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट. तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n is equal to 3 होगा फॉर द सेकंड एक्साइटेड, क्योंकि हमने फर्स्ट जो है इट इज कॉल्ड एज ए ग्राउंड स्टेट. तो फर्स्ट नंबर को हमने ग्राउंड स्टेट बोला, बाकी की सभी एक्साइटेड. तब n is equal to 2 इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n is equal to 2, मतलब नंबर है फर्स्ट और एक्साइटेड. तो एक्साइटेड का तुम्हें +1 कर देना है, मतलब फर्स्ट का तो 1 हुआ और उसी में एक्साइटेड है तो +1 करो, इट इज n is equal to 2. देन सेकंड एक्साइटेड, तो सेकंड एक्साइटेड मतलब 2 + 1 n is equal to 3. ऐसे शॉर्टकट तुम अपनी तरह से सोच सकते हो. और अब अगर पूछे कि कैलकुलेट द एनर्जी एमिटेड whenever electron jump from first excited state to the ground state, तो first excited मतलब n is equal to 2. just remember the general equation and just take the difference. कि whenever electron jump from first excited state to the ground state, easily we can calculate the energy. अब इसमें तुम्हें इसका भी पॉजिटिव डिफरेंस लेना है. वैसे तो हम करेंगे कि 3.4 माइनस ऑफ माइनस 13.6, तो वैसे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन एनर्जी डिफरेंस जब भी लो और ऐसे रिलीज एनर्जी whenever electron jump from higher energy level to the lower energy level, it emits the energy. तो एमिशन एनर्जी ऑलवेज हम पॉजिटिव में लेंगे. मतलब यहाँ पर तुम ऐसा ही करो कि डिफरेंस के लिए जस्ट कंसीडर 3.4 एंड 13.6. 13.6 minus 3.4,
जो भी बोलेंगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। अब अगर पूछे इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, दैट मींस n is equal to 3 to n is equal to 1, और यह एनर्जी तुम्हें याद नहीं है, तब जस्ट रिमेंबर द बेसिक इक्वेशन 13.6 upon n square। क्या बोला? तो कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, तो सेकंड एक्साइटेड मतलब n is equal to 3, तो डिवाइडेड बाय 9 होगा जो भी वैल्यू आए, एंड ग्राउंड स्टेट मतलब n is equal to 1, इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस ले लो, दैट मच ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड जो बोला कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फिफ्थ एक्साइटेड n is equal to 6 एंड फर्स्ट एक्साइटेड n is equal to 2, यहाँ पर वैल्यूज रखो, उसका हमें आंसर मिल जाएगा। अब ये जो हमने एनर्जी की है उसी एनर्जी से रिलेटेड मतलब जिसकी जो बेसिक इक्वेशन है उसी से हमें एक इक्वेशन डिराइव करनी है वेवलेंथ, और वो वेवलेंथ की इक्वेशन ऑलरेडी हमने ऐसे सब सीरीज के लिए कर रखी है, और वही इक्वेशन यहाँ पर हमें वापस मिलेगी। इफ वी कंसीडर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल EI टू lower energy level EK, that means if we consider EI minus EK, so EI minus EK according to the third hypothesis of Bohr, third hypothesis of Bohr से होगा it is h mu IK, तो EI minus EK। अब यहाँ पर EI और EK के लिए ये रखो, और हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं तो Z is equal to 1, then we can common out is e raised to 4m upon 8 epsilon naught square h square, ये कॉमन होगा e raised to 4m upon 8 epsilon naught square h square। अब करना है EI माइनस EK, तो यहाँ पर NI होगा और वो नेगेटिव, माइनस EK तो यहाँ पर होगा NK, तो वो माइनस माइनस पॉजिटिव होगा, दैट्स व्हाई वी कैन से 1 upon NK square minus 1 upon NI square। Once again, when we write about the EI and EK energy level, EI रखेंगे तो वो नेगेटिव है, EK का ऑल्सो नेगेटिव, बट EI माइनस EK तो EK के लिए ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पहले लिखेंगे और माइनस 1 upon NI square, that is h nu। That's why we can calculate frequency of the emitted radiation। तो नेक्स्ट पार्ट ऐसा भी हो सकता है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, तो जो भी एनर्जी डिफरेंस मिले यहाँ पर जो आंसर मिलेगा एनर्जी डिफरेंस का, उसको h से डिवाइड कर दो, बिकॉज वी नो दैट EI माइनस EK इज इक्वल टू h nu। तो जो भी ऐसे फ्रीक्वेंसी पूछे देन h से डिवाइड कर दो, प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड करो, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद रखो 6.625 10 to the power minus 34 जूल इनटू सेकंड। तब यहाँ पर हमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी। अभी हम जो कर रहे हो इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, जो हमें कॉमन इक्वेशन मिलेगी रिगार्डिंग विद द ऑल सीरीज। तब यहाँ पर अब अगर यहाँ पर h से डिवाइड भी कर दे, देन वी नो दैट nu इज इक्वल टू c अपॉन लेम्डा, देन वी कैन से लेम्डा IK। तो ये होगा hc अपॉन लेम्डा IK इज इक्वल टू e रेज़ टू 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 अपॉन nk स्क्वायर minus 1 upon ni square। Just make the subject 1 upon lambda ik, then it is e raised to 4m upon 8 epsilon naught square c, तो ये हो जाएगा h cube 1 upon nk square minus 1 upon ni square। अगर इसका तुम वैल्यू लोगे
तो वो हमें रेडबर्ग कांस्टेंट जितनी वैल्यू मिलती है। मतलब रिमेंबर कि हियर r is equal to e raised to 4m upon 8 epsilon naught square ch cube, and its value is 1.09737 10 to the power 7 meter inverse. You can check to yourself also. ये सभी वैल्यूज रखो, इसका आंसर तुम्हें यही मिलेगा। That is called Rydberg constant. तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 1 upon lambda ik is equal to r 1 upon nk square minus 1 upon mi square। और उसमें देखो ei greater than ek, that's why here we can say about ni greater than nk. Okay, whenever electron jump from higher energy level to the lower energy level, higher orbital state to the lower orbital state, तो ni greater than nk। इसीलिए यहाँ पर जो भी होगा वो बेस्ड ऑन सीरीज, लाइनमैन, बार्मर, पास्कल, ब्रैकेट, फंड, और उसके बाद जो वैल्यूज लेते हैं उसके नेक्स्ट नंबर से चालू करते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आगे हमने ऑलरेडी यूज कर रखी है बेस्ड ऑन द सीरीज नंबर के साथ। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द वेवलेंथ। अब ये जो होगा वो सीरीज से रिलेटेड होगा, और यहाँ पर जो मिलेगा वो उसके स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड होगा। ये नंबर सीरीज दिखाएगा, और यहाँ पर जो है वो कौन सी नंबर की लाइन है वो दिखाएगा। तो यहाँ से मतलब अगर हमारे पास ये इक्वेशन है और पर्टिकुलरली हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इक्वेशन, इससे हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो व्हाटएवर द एनर्जी एमिटेड, एनर्जी मिल गई तो फ्रीक्वेंसी भी मिल सकती है, फ्रीक्वेंसी एमिटेड, और ऐसे फ्रीक्वेंसी मिली तो ऐसे इसका यूज करके हमें वेवलेंथ भी मिलेगी। मतलब ये एक जो भी डायग्राम है उससे, ये एक इक्वेशन है, उससे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली इट इज आस्क्ड इन एमसीक्यू। इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, that how much energy absorbed, कि how much energy is absorbed whenever electron jump from first excited state to the fourth excited state। तो first excited मतलब n is equal to 2 and fourth excited मतलब n is equal to 5। तो उसका डिफरेंस ले लो, that much of positive energy, supplied energy always considered as a positive। ऐसे ही अब ऐसा भी कर सकते हैं कि ground state to the second excited state, the energy, calculate the energy required whenever electron jump from first excited state to the second excited state। तो first excited state की एनर्जी, second excited state की एनर्जी, उसका डिफरेंस ले लो और पॉजिटिव डिफरेंस ही लो। अगर तुम्हें ये वैल्यूज डायरेक्ट याद नहीं है तो इस इक्वेशन से कर सकते हो। बाकी ये जो इनिशियल वैल्यूज है वो याद रखो, तो क्या होगा, इजीली फर्स्ट सेकंड तक तो डायरेक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट की एनर्जी -13.6, सेकंड की एनर्जी 3.4, थर्ड की एनर्जी 1.51। अब क्वेश्चन में ध्यान रखो कि ऐसा अगर पूछे कि कैलकुलेट द एनर्जी एमिटेड व्हेन इट्स जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट पूछे तो वही नंबर लेना है। तो थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, तो ऑर्बिट अगर पूछे तो सेम नंबर लेना, बट अगर ऐसा पूछे कि सेकंड एक्साइटेड, तो सेकंड एंड एक्साइटेड मतलब n इज इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन के हिसाब से याद रखो कि उसमें क्वेश्चन में वर्डिंग क्या है। एक्साइटेड वर्ड है तो जो भी नंबर है उसका +1 कर देना है, और अगर ऐसा हो कि उसका सिंपल नंबर दिया है हमें, कई बार ऐसा होगा कि इट इज जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू द ग्राउंड स्टेट, तो थर्ड ऑर्बिट n is equal to 3 and ground state means n is equal to 1। थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड ऑर्बिट means n is equal to 3, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n is equal to 2। तो यहाँ से यहाँ का ही डिफरेंस हमें लेना है। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा, पहले क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो, उसको समझ लो, और ये इक्वेशन के हिसाब से तुम्हें कुछ भी पूछे, एनर्जी एमिटेड या एब्जॉर्ब
या फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पूछे या फिर वेवलेंथ का, कोई भी हमें आंसर मिल सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर द हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन नहीं है, कोई दूसरा है, तो इनटू z² करके भी हम ये पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे रिलेटेड MCQs ऑलवेज आते ही है एग्जाम के अंदर। फिर तुम ये बोर्ड की एग्जाम कंसीडर करो कि फिर JEE और NEET की एग्जाम करो, इससे रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन वहां पर मिलता है। लेकिन उसके लिए क्वेश्चन पहले अच्छी तरह से पढ़ लो कि एनर्जी कहाँ से कहाँ हमें कैलकुलेट करनी है। डिफरेंस तो डायरेक्ट मिलेगा और इजीली मिलेगा, लेकिन जो पूछा है उस हिसाब से कंसीडर करके करो, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तुम थोड़ी अगर ऐसा मिस्टेक कर दोगे क्वेश्चन समझने में, तो फिर MCQ का आंसर रॉन्ग आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो रॉन्ग आंसर होता है वो भी ऑप्शन में तो रहेगा, तब वहां पर हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। वंस अगेन, एक्साइटेड स्टेट के लिए अगर कहीं पर भी वर्ड लिखा है एक्साइटेड स्टेट, देन जो नंबर है उसमें +1 कर देना है, और ग्राउंड स्टेट के लिए n = 1 कंसीडर करो। देन टुडेस डिस्कशन में हमने रेडियस ऑफ, फिर एनर्जी से एनर्जी बैंड डायग्राम, एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ की इक्वेशन जो है वो पर्टिकुलरली हमने आगे कर रखी है, तो यहाँ पर ऐसे लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज का जो नया है वो ये रिडबर्ग कांस्टेंट जो है उसकी इक्वेशन e⁴m/8ε02CHQ, कि यहाँ से हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। कभी भी रिडबर्ग कांस्टेंट पूछे तो उसकी इक्वेशन क्या है तो याद होना चाहिए, e⁴m/8ε02CHQ। अब तुम्हें अगर कोई भी रेडियस की इक्वेशन पूछे, याद होना चाहिए कि इट इज m²h²ε0/πz²m। टोटल एनर्जी पूछे, इट इज -z²e⁴m/8ε02n²h²। रिडबर्ग कांस्टेंट पूछे, e⁴m/8ε02CHQ। ऐसे तुम्हें मगअप करके रखना है इक्वेशन फॉर द रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस, टोटल एनर्जी एंड रिडबर्ग कांस्टेंट, जो तुम्हें आगे जाकर कोई भी ऐसे एनर्जी लेवल्स के अलग अलग एनर्जी की अगर कैलकुलेशन करनी है, ऐसे रेडियस की कैलकुलेशन करनी है, तो वो ऐसे हेल्प कर